all. I am C.A. Shreya Gupta, Assistant Professor, Faculty of Commerce, Farooq University. It gives me immense warmth and great pleasure to welcome all of you to this webinar exclusively organized on World Suicide Prevention Day. It gives me tremendous contentment to be presenting the welcome speech amongst all of you, our guest speaker, Mr. Jitendra Khimlani. Mr. Jitendra Khimlani is a senior faculty at the Art of Living Foundation, founded by Gurudev Sri Sri Ravi Shankar. He is a multifaceted personality, and from last 8 years, he is teaching health, wellness, and personal self-development programs to corporates, youth, children, teens, and adults. Till now, he has reached more than 30,000 people through his programs and motivational sessions. He is also a faculty for the Prajna Yoga program, in which children are taught how to develop their intuitive ability, that is, sixth sense. Being an expert in dealing with youth while handling a team of more than 1,000 youths, he has been invited for conducting motivational sessions in various colleges and universities of Gujarat to help channelize their energy in today's youth. Currently, he is Gujarat State Coordinator for the youth programs of Art of Living, which basically includes Art of Living workshops in colleges, universities, and educational institutions in Gujarat. He is also looking after the media department of the Art of Living Bureau of Communication, and through that, he is taking care of media communications of the Art of Living and Gurudev Sri Sri Ravi Shankar in central Gujarat. Before we begin this webinar, I would like to express my heartfelt gratitude to the viewers for joining hands with us to make this webinar a successful venture. Webinars are organized and conducted by Farooq University for the general public to gain sight and information that would remain effective in their life, exercises, and work. Each topic for discussion for today's webinar was chosen keeping in mind and interest of the youth. I am sure this webinar will be profitable and fruitful for everyone present here. I now hand over the charge of the session to Mr. Jitendra Khimlani. So thank you, Shreya, for amazing introduction, and welcome to all of you. आप जितने भी लोग यहाँ पर हैं, सब लोग अपना कैमरा स्विच ऑन करें. So we will continue. I can see you all. जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग कैमरा ऑन कर सकते हैं, you can on your camera. So welcome to this webinar. तो आज सुसाइड प्रिवेंशन डे है और आज सुबह ही मैंने एक गवर्नमेंट कॉलेज में आई हैव एड्रेस विद पैनल पे बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट थे, कुछ काउंसलर्स थे और हमारे एमएस यूनिवर्सिटी से कुछ प्रोफेसर्स थे और एसपी यूनिवर्सिटी से कुछ प्रोफेसर्स थे. उन लोगों ने ये सारा, हम लोगों ने जब सेमिनार पे, जब पैनल पे हमने जब बात किया, तो जितने भी लोगों ने ये सब बात किया, उसमें आज जो हम बात कर रहे हैं वो कुछ नया नहीं है. ये सब लोग अनुभव कर रहे हैं. ये सुसाइड अभी तो जैसे अभी लास्ट हमने देखा कि सुशांत के डेथ के बाद अभी वो जो भी है, लेकिन उसके बाद मैं जब यंगस्टर्स में ये ट्रेंड देख रहा हूं, है ना, कि कुछ भी नहीं हुआ तो जीवन को एंड कर दो. तो आज हम यहाँ पर एक नई होप के साथ इस सेशन को शुरू करने वाले हैं, है ना. तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि अभी क्या हाल है हमारे देश का. श्रेया ने मुझे बताया था कि आप कुछ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बताना, लेकिन आई डोंट वांट टू शेयर ईच एंड एवरी डेटा बिकॉज इट इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट. बट आज मैं वो बात करने वाला हूं जो इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है, है ना. तो आज हम प्रॉब्लम सबको पता है, WHO की वेबसाइट पे जाएंगे तो प्रॉब्लम का भंडार है, लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं वो सॉल्यूशन की बात करने वाले. गॉट इट? सबको समझ में आ रहा है? हाँ, तो हम सॉल्यूशन की बात करेंगे आज, है ना. तो देखो, अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम की ओर देखें तो मैं भारत की बात करूंगा, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड में देखें तो 8 लाख लोग एवरी ईयर सुसाइड करते हैं. ये डेटा है. मतलब एवरी सेकेंड में 40 सेकेंड में एक व्यक्ति सुसाइड कर रहा है. तो समझ लो ये सेशन खत्म होगा तब तक इस दुनिया में 90 लोग चले गए होंगे सुसाइड को लेकर. तो ये बहुत चौंकाने वाले नंबर्स हैं और डे बाय डे ये नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं. 3.5% के रेशियो से ये बढ़ता जा रहा है. और अगर आज हम यहाँ पर एक भारत के नागरिक के रूप में बात करें तो एवरी ईयर 1 लाख लोग इंडिया में सुसाइड करते हैं
और 2018 में 1,34,516 लोगों ने, ऑफिशियल जो आंकड़े हैं, वो सुसाइड किया था लोगों ने, राइट। और मल्टीपल रीजन हो सकते हैं उसके, उसके मेरे पास स्टेट वाइज भी उसके फिगर्स हैं, बट उसका कोई मतलब नहीं है। सी मेंटल हेल्थ के लिए अगर आप देखो, उसका बहुत सारा रीजन हो सकता है। फैमिली प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप, यंगस्टर्स में ज्यादातर रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, कुछ इलनेसेस है, बॉडी में कुछ स्ट्रेस है, या कुछ बीमारी है। कई लोग बोल रहे थे मुझे कि सुसाइड का सेकेंड प्रॉब्लम इज सोरियासिस, सेकेंड थर्ड प्रॉब्लम इज, किसी लोग को स्किन डिसीज हो जाता है, सोरियासिस हो जाता है, तो लोग जल्दी सुसाइड कर। दरअसल मैं आज यही बताना चाह रहा हूं, यहाँ हम डरा के कुछ चीजों को नहीं फॉलो करेंगे, लेकिन आई वांट, यहाँ जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, जितने भी युवा मुझे सुन रहे हैं, आज हम दो काम करने वाले हैं। तो हमने आज सुबह में प्रेयर किया था, वो है ना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, वो प्रेयर है, सबको पता है ना। और वो प्रेयर में है, मन का विश्वास क्या है, कमजोर होना, है ना। तो ये जो मन का विश्वास जो है ना, वो मन की बात क्यों की है ना, हमारे प्रधानमंत्री जी भी मन की बात करते हैं, है ना। ये क्यों जरूरी है आज? देखो, सुसाइड करने के लिए बहुत सारे कारण हैं, राइट, लेकिन इसमें से कैसे बचा जाए, आज हम वो बात करने वाले हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज देखो, आप अपने जितने भी फ्रेंड्स, आप 18 से 29 साल के लोगों में ज्यादातर ये टेंडेंसी पाई जाती है। तो आप ज्यादातर जो लोग कॉलेज में है, वो 18 to 30 ईयर के बीच में कॉलेज में या हायर स्टडीज करते हैं। तो ये जो एज ग्रुप है, इसमें सबसे ज्यादा चैलेंजेस आपके जीवन में आता है, और उस चैलेंजेस के लिए अगर आपका माइंड तैयार नहीं है, इसीलिए अगर उसको थोड़ा सा स्पिरिचुअल बैकग्राउंड से देखें, तो आपका जो, हमारा कहते हैं कि 7 बॉडीज है हमारा, तो जैसे ही वो श्रिंक होता है, तो प्राण शक्ति जो हमारा ऑरा है, जो पावर है, वो बहुत श्रिंक हो जाता है, तब हमें सुसाइड करने को वो मन प्रेरित होता है। तो आज मैं कुछ सॉल्यूशन की बात करने वाला हूं, राइट। तो दूसरों की मदद करने से पहले आज हम अपनी मदद कैसे करते हैं, है ना। तो साइकोलॉजी को अगर हम देखें, तो वो कहते हैं कि 10 लोगों में से 6 व्यक्ति साइकोलॉजिकली फिट नहीं है, राइट। अगर हम साइकोलॉजी से बात करें, तो 10 में से 6 लोग फिट नहीं है। अभी उसमें से परसेंटेज हो सकता है शायद ऊपर नीचे, लेकिन ये साइंटिफिक फैक्ट्स है, ये डेटा ऐसा बता रहा है। तो हम क्या करते हैं कि ये समझ लेते हैं कि मान लो कोई भी कारण से, हम सभी अपने जीवन की बात करें कि कोई भी कारण से मान लो कि हमें आज ऐसा हो गया कि भाई ब्रेकअप हो गया। सबसे ज्यादातर कारण यही है, ब्रेकअप। अभी इस एज में ज्यादातर ऐसा होता है कि मोह हो जाना, ये बहुत नेचुरल है ना। तो ये कोई गलत काम नहीं है भाई। देखो, अट्रैक्शन होना इसी एज में होगा। अगर कोई कहता है कि इस एज में नहीं होगा, तो आप कहीं रॉन्ग दुनिया में जी रहे हो। ये नेचुरल चीजें हैं, नेचुरल फिनोमिना है कि किसी के प्रति अट्रैक्शन होना, लेकिन उसमें उस समय में अपने आप को नहीं संभल पाते, नहीं संभल सकते, इसीलिए फिर वो सुसाइड किया, और या जीवन को अभी मुझे नहीं जीना, इस भाव के साथ जब जीते हैं, वो प्रॉब्लम है। तो ये जो मनोस्थिति जो है, राइट, ये मन को जो संभालने वाली जो बात है, वो कैसे करें, आज के युग में यही जानने वाली बात है, राइट। कितने लोग जानना चाहेंगे कैसे करें? रेज योर हैंड। कितने लोग जानना चाहेंगे? हाँ, तो जो जानना चाहते हैं उनके लिए बता रहा हूं। तो मैं आज 2 चीजें करूंगा, कुछ तो बात करेंगे और थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी करेंगे, है ना। तो देखो, जो लोग मुझे यहां सुन रहे हैं, सारे यंगस्टर्स, अगर आप पूरे दिन में अपने मन को देखो, है ना, तो आपका शरीर नहीं थकता। आप क्या बोलते हैं, अरे मैं तो थक गया आज, है ना। तो कौन थकता है? आपका शरीर नहीं थकता, आपका मन थक जाता है ना। अगर मन में ऊर्जा है, इफ योर माइंड इज कैपेबल टू हैंडल ईच एंड एवरी सिचुएशन, आप दिन में 16 घंटे काम कर सकते हैं। अब उसको बूस्ट कैसे किया जाए, इसकी बात करते हैं। तो थोड़ा सा अगर आप आपके मूड की बात करेंगे, अगर मैं आपसे पूछूं, पूरे दिन में कितनी बार आपके माइंड का क्वालिटी खराब होता है, मतलब हम बोले कितनी बार मन बिगड़ता है ना। तो कई लोग बोलेंगे 10 बार, 15 बार, 20 बार, है ना। तो वो क्या होता है, मन खराब भी हो जाता है, और बाद में क्या होता है, ऑटोमेटिकली ठीक भी हो जाता है, यस और नो, है ना। तो वो, लेकिन वो मन का जो क्वालिटी जो बिगड़ता है, उसमें आपके परफॉर्मेंस के ऊपर असर है।
अभी जैसे मान लो थोड़ा सा हम मन को उसको रिलेट करके ब्रेथ के साथ देखें, तब आपको राज पता चल जाएगा। तो सीक्रेट क्या है ना? तो आप जब पैदा हुए, जब आपका जन्म हुआ, सबसे पहले काम आपने क्या किया था? कई लोग बोलते थे रोए, मुझे कई लोग बोलते हम रोए सबसे पहले। नहीं, जब आप पैदा हुए तो सबसे पहले काम क्या किया? सांस ली और बाद में रोए, यस और नो? और सबसे आखिरी काम क्या करेंगे? सांस छोड़ देंगे। और अगर सांस छोड़ने के बाद अगर आपने अच्छा काम किया होगा तो शायद लोग रोएंगे आपके लिए। और इन्हीं दो सांसों के बीच में जीवन है आपका। अभी कितने लोग सांस ले रहे हैं? रेज योर हैंड। हाउ मेनी ऑफ यू आर ब्रीदिंग? देखो, फ्यू पीपल हैव स्टिल डाउट, है ना? सी वी आर नॉट अवेयर, राइट? हम लोग ऐसा हाथ ऊपर करने से पहले ओ मुझे पूछ रहे हैं। वी आर नॉट अवेयर। व्हाई? बिकॉज वो अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं। आर यू अवेयर अबाउट योर ब्रीदिंग? नो। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट है, आज मैं इसलिए थोड़ा सांस के प्रति बता रहा हूं, क्योंकि ये जो ब्रेथ है ना, यही सुसाइड का सॉल्यूशन है और यही आपके मनोस्थिति का भी सॉल्यूशन है, राइट? किसी ने शायद आपको बताया नहीं होगा, आज मैं आपको सीक्रेट बताने जा रहा हूं, राइट? तो देखो, मन में जो भी भाव है, मान लो ब्रेकअप हो गया, हार्ट ब्रेक हो गया आपका, तो मन में जो भी भाव है, इमोशन जो एक्सपीरियंस कर रहा है आपका माइंड, वो अगर रिपीट हो जाएगा बहुत सारी बार, तब सुसाइड करने को मन करता है कि आई डोंट वांट टू लिव, आई कैन नॉट लिव विदाउट हर और विदाउट हिम। एम आई राइट? तो ये इसलिए होता है क्योंकि आपके मनोस्थिति, मन में ये अनुभव हो रहा है। तो उस समय पे आपकी सांस की जो गति है, जो सांस की जो पैटर्न है, वो एक पर्टिकुलर रिदम में है और वही हमें अनुभव करना है। वी डोंट नो। इसीलिए आप समझ सको, इसलिए मैं आपको थोड़ा आसान करके बताता हूं। देखो, यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, आप जब गुस्सा होते हैं ना, दिशा, अंबिका, निकी, ज्योति, गुस्सा होते कि नहीं? अदनान, संध्या, व्हाट यू से, नम्रता, गुस्सा होते हैं, हाँ या ना? है ना? गुस्सा होते हैं, है ना? वेरी गुड। गुस्सा होते हैं। और जब हम गुस्सा होते हैं तब हमारी सांस कैसे चलती है? जब हम गुस्सा होते हैं तो हमारी सांस फास्ट चलती है ना? हैव यू ऑब्जर्व? है ना? एकदम फास्ट गति होती है सांस की, है ना? और ये हमने कभी महसूस नहीं किया, लेकिन दैट इज नॉट फास्ट ब्रीदिंग, दैट इज पर्टिकुलर पैटर्न, राइट? अभी मान लो जब आप कहीं रिसोर्ट में गए हो या कहीं दरिया के किनारे पे गए हो, शांत महसूस कर रहे हैं आप, बड़ा प्रसन्न, एकदम चिल मारने गए हो आप कहीं रिसोर्ट में या दरिया के, तब आपकी सांस लंबी गहरी चल रही है। हमें इतना ही पता है। लेकिन अगर आप थोड़ा देखेंगे, जब आप ईर्ष्या का अनुभव कर रहे हो किसी से, आपको जेलस हो रहा है, होता है ना, जेलस नेचुरल है, तो जेलस हो रहा है, तो अब आपकी एक सांस की अलग पैटर्न चल रही है। जब आपको कोई काम वासना के विचार आ गए तो भी एक सांस की अलग पैटर्न चल रही है। जब आपको ग्रीड आ गया, मन में लालच का विचार आ गया, तब भी एक सांस की अलग पैटर्न चल रही है। और जब हमें किसी से अटैचमेंट हो जाए, मोह हो जाए, तब भी एक सांस की अलग पैटर्न। तो हमें लोग बोलते क्या, आप सिखाते क्या हो? व्हाट इज आर्ट ऑफ लिविंग? हमें तो आता है, वी नो हाउ टू लिव अवर लाइफ। तो हमें लोग पूछते हैं, तो हम लोगों को बोलते हैं कि हम सांस लेना सिखाते हैं। तो किसी ने बोला, भाई सांस लेना तो हमें आता है, आप क्यों सिखाते हो? तो मैं कहता हूं, हम आपको खुशी की सांस लेना सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं आपको? खुशी की सांस। तो जब आप थोड़ी देर के लिए खुशी की सांस जब लेते हो, उस पैटर्न में ब्रीदिंग करते हो, यू कैन बी हैप्पी। जस्ट करेक्ट योर ब्रेथ एंड करेक्ट योर माइंड। द सॉल्यूशन इन योर हैंड, आपके हाथों में उसका सॉल्यूशन है। कभी भी कोई आपके माइंड के ऊपर ओवर पावर नहीं कर सकता। आफ्टर दैट यू कैन बिकम अ गिवर, आप गिवर बन सकते हो, है ना? आज ही मैं अभी जस्ट आई फॉरगॉट टू शेयर विद श्रेया, लेकिन यहां पर अभी ही मुझे एक येल यूनिवर्सिटी का एक मुझे रिसर्च मिला है, येल न्यूज की तरफ से, मैं आप सभी को शेयर कर दूंगा, है ना? अभी मैंने यहां पर चैट सेक्शन में मैंने डाला है, आप प्लीज उसको रिफर कीजिएगा सब लोग, है ना? ये अभी मैंने देखा, देखो ये जो हम सिखाते हैं, जो ब्रीदिंग टेक्निक हम सिखाते हैं, ये बाहर की यूनिवर्सिटीज में
उसके ऊपर रिसर्च किए हैं बहुत सारे, इवन इंडिया में भी निमहांस में हुआ है, बहुत सारे हार्वर्ड में भी हुआ है, ऑक्सफोर्ड में भी हुआ है ना। तो वो जो रिसर्च है वो ये है कि जब आप ऐसा ब्रीदिंग करते हो इस पर्टिकुलर एज में, अगर आप, तो आप आपके मन के ऊपर कंट्रोल पा सकते हो। और जब आपका मन के ऊपर कंट्रोल आ जाएगा तो नो वन कैन ओवर पावर टू योर माइंड। आप सुसाइड करने की और कोई भी नहीं जा सकता। और आपके स्टूडेंट लाइफ में आपको जो जरूरत है वो मिलता है। कैसे? अगर हम स्टूडेंट लाइफ में देखें तो आपको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट हम पढ़ाई करते हैं, है ना। आई होप आप सब लोग जितने लोग स्क्रीन पे उतने लोग तो कर ही रहे हैं, है ना। तो हम पढ़ाई, बिकॉज श्रेया ने मुझे बताया था कि सारे मैं ब्राइट स्टूडेंट को स्क्रीन पे रखने वाले हूं। तो जितने भी लोग पढ़ाई करते हैं, हम जब पढ़ने बैठते हैं, अगर 2 घंटा पढ़ाई करते हैं तो कितना देर याद रहता है हमें, कितना देर हमें याद रहता है? तो मेरा ये, मैं आपको, आप मुझे आंसर दो उससे पहले मैं बता देता हूं। मेरा जितनी भी कॉलेजेस में, जितने भी यूनिवर्सिटीज में गया हूं, एक ग्लोबल आंसर है, यूनिवर्सल आंसर है 15 मिनट। 2 घंटा पढ़ाई करते हैं, हमें 15 से 20 मिनट याद रहता है ना। तो मैं उनको बोलता हूं क्या प्रॉब्लम है, तो स्टूडेंट बताते हैं आई हैव अ कॉन्सेंट्रेशन इश्यू, है ना। व्हाट इज ए कॉन्सेंट्रेशन इश्यू? तो मैं उनको पूछता हूं, भैया आप जब मूवी देखने जाते हो तब तो कॉन्सेंट्रेशन इश्यू नहीं है, बिकॉज आप 3 घंटे का मूवी देखते हो, आपको सारा चीज याद है। हीरोइन ने कौन से कपड़े पहने थे, हीरो ने कौन से कपड़े पहने थे, क्या स्टोरी लाइन था, क्या सीन के बाद क्या सीन, एवरीथिंग यू रिमेंबर। तो वो फंक्शन तो है, व्हाट यू से, है ना। कॉन्सेंट्रेशन का फंक्शन तो है, वो काम कर रहा है। द प्रॉब्लम इज यू डोंट अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी बिहाइंड इट। द पॉइंट इज दैट जब आप मूवी में बैठे हो तब आप दोनों चीजों को साथ में कर रहे हैं। वो दोनों चीजें क्या है? पहला है आप फोकस है, यू आर फोकस एट द मूवी, और दूसरा है आप रिलैक्स हो, है ना। आप पढ़ाई करते हो तब आप क्या करते हो? एग्जाम के 6 महीने पहले फोकस या रिलैक्स? रिलैक्स। 6 महीने पहले फोकस नहीं है, रिलैक्स है, तो रिलैक्स होके पढ़ रहे हैं, है ना। एग्जाम के 1 महीने पहले फोकस या रिलैक्स? तो कई लोग बोलेंगे फिर भी रिलैक्स। एग्जाम के अगले दिन फोकस या रिलैक्स? ओनली फोकस, नो रिलैक्स। कोई अगर किसी ने छेड़ भी दिया, बोले अरे भाई तू दूर जा, मेरे को पढ़ाई करने दे, तो वहां पर हम लोग प्रेशराइज होके पढ़ाई करते हैं। तो फोकस है, रिलैक्स करना भूल गए। तो ये हाउ टू फोकस एंड रिलैक्स एट द सेम टाइम जब आप सीख जाओगे, आपका कंसंट्रेशन पढ़ाई में भी वही रहेगा। कई लोग मुझे बोलते हैं कि नहीं वो तो हमारा इंटरेस्ट है इसलिए। नो, इट्स नॉट लाइक इंटरेस्ट। पॉइंट इज दैट यू डोंट नो हाउ टू फोकस एंड हाउ टू रिलैक्स एट द सेम टाइम। देखो, इसके लिए मैं आपको एक बहुत राज की बात बताऊंगा। अगर आप जब फोकस होके पढ़ते हैं, नहीं मुझे पढ़ना है, कल एग्जाम में ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, इसलिए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं ना, मोस्ट वीआईपी क्या बोलते हैं आप, वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो पढ़ लेना, इतना पढ़ लोगे तो पास हो जाएगा पप्पू, है ना। तो अगर इतना पढ़ लेंगे तो वो क्या, कैसे पढ़ते हैं हम? वो फोकस से पढ़ा है। इसीलिए जब आप क्वेश्चन पेपर देखते हो दूसरे दिन तो आपको याद है, अरे यार ये तो मैंने कल ही पढ़ा था, रात को, कल रात को ही पढ़ा था, लेकिन आपको शुरुआत नहीं याद आती। ऐसा हुआ है ना। कोई शुरुआत बता दो, लास्ट पेज पे सेकंड पैराग्राफ में है, प्लीज कोई बता दो यार, पूरा याद है लेकिन शुरुआत बता दो, यस और नो। क्यों? क्यों? क्यों कि आपको वो फोकस होकर पढ़े थे, आप तब रिलैक्स नहीं थे। और जब एग्जाम हॉल के बाहर निकलते हो तुरंत याद आ जाता है। कितने लोग का ये भी एक्सपीरियंस है ना। अरे यार याद आ गया, क्यों? क्योंकि आप बाहर आके रिलैक्स हो गए। डिड यू गेट माय पॉइंट? So this is really, really beautiful how to focus and relax at the same time. So in 155 countries, it's a world's second largest NGO जो हम सिखा रहे हैं। अमेरिका में देखो, हमारे से ज्यादा उस देश के नागरिक जो है वो जागरूक है। 52 यूनिवर्सिटीज, 55 यूनिवर्सिटीज में हम जो सिखाते हैं, जो कोर्स है उसको यस प्लस कोर्स कहते हैं। दिस कोर्स इज अ पार्ट ऑफ द स्टडी because they know अब स्टूडेंट को क्या जरूरत है। In Google, it's a part of the training. In NASA, it's a part of the training. In World Bank, is a part of the training. So why they teach?
this breathing technique, what I am going to just share the trailer with you, I will tell you. So इससे क्या होता है, concentration increase होता है, right? जब इसीलिए जो पढ़ाई से सुसाइड करने वाले लोग हैं, मैं इसीलिए आज ये सारा सब एक करके मैं पहलू को एड्रेस कर रहा हूं. जो लोग पढ़ाई में फेल हो जाते हैं बिकॉज उनको पता नहीं है हाउ टू फोकस एंड रिलैक्स एट द सेम टाइम, राइट? हम लोग बहुत सारे टेक्निक सिखाते हैं. वी हैव अ टेक्निक कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन टेक्निक. 2 मिनट्स करो. कितना मिनट? 2 मिनट्स बिफोर यू स्टार्ट योर स्टडी. टेक योर ऑल द बुक्स एंड पेन एंड एवरीथिंग एंड 2 मिनट का टेक्निक है. आपका वो कॉन्सेंट्रेशन टेक्निक से फोकस एंड रिलैक्स एट द सेम टाइम हो जाएगा. Isn't it amazing? Right? Because we don't know, हमको किसी ने सिखाया नहीं है how to focus and relax at the same time when you are studying, जब आप पढ़ रहे हो. तो ये सबसे पहला हुआ concentration. एक स्टूडेंट के लाइफ में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसीलिए मार्क्स नहीं आते, केटी आता है या फेल हो जाते हैं, इसीलिए लटकने का सोच लेते हैं कि अब मेरे को नहीं जीना, राइट? तो ये सबसे पहला बात है. दूसरा है एक स्टूडेंट के लाइफ में कॉन्फिडेंस. देखो आप यहां जितने भी मेरे फ्रेंड यहां पर हैं, लाइव मुझे देख रहे हैं, उसमें से 80% लोग जॉब करने वाले हैं. 20% लकी लोग होते हैं जिनका कुछ बिजनेस होता है, फादर का कुछ होता है या कुछ दे आर गोइंग टू स्टार्ट सम स्टार्टअप और समथिंग. बट 80% लोग जॉब करेंगे. और कई बार ऐसा होता है आपको पता भी है, यू आर अवेयर अबाउट दैट नॉलेज, यू आर प्रिपेयर्ड ऑल्सो, लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी होने के कारण हम उस इंटरव्यू को या ओवरऑल कॉन्फिडेंस की कमी होने के कारण हम उसको फेस नहीं कर पाते, राइट? और वो फेस नहीं कर पाते, इसीलिए सेल्फ एस्टीम हमेशा लो रहता है. और वो परफॉर्मेंस में, जॉब में कहो या पर्सनल लाइफ में कहो या प्रोफेशनल लाइफ में कहो, कई सारे लोगों को ये इशू है. मेरे एक फ्रेंड माइक्रोसॉफ्ट में है, मैं उनको पूछता हूं हमेशा, ही इज इनटू एचआर. मैंने उसको पूछा कि आप क्या देखते हो एक स्टूडेंट में, व्हेन यू रिक्रूट समवन, व्हाट यू लुक इनटू देयर आईज, आप क्या देखते हो उनकी आंखों में? बोले जीतू भाई, हम उनको पहले 4-5 सेकंड में तो हम जज कर लेते हैं. उनका इंटरव्यू 5 सेकंड में हो जाता है. वी सी देयर द स्पार्क इन देयर आईज. हमें पता चल जाता है कि व्यक्ति क्या करने वाला है. बाकी सब तो नाटक है. क्या बोला उसने? बाकी सब कुछ तो नाटक है. तो वो एक प्रोसीजर है जो फॉलो करना है, लेकिन पहले 5-7 सेकेंड में, है ना, अभी 5-7 सेकेंड में यू कैन नॉट इम्प्रेस समवन विदाउट सेइंग समथिंग. सो दिस इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस. वो कॉन्फिडेंस कहां से आएगा, राइट? सो अर्ली यू टर्न है और उसके बहुत ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेज है. क्या बोलते हो, यस और नो, है ना? तो वो क्लैरिटी ऑफ माइंड, डिसीजन मेकिंग पावर. और वो क्यों नहीं आता, ये भी मैं बताना चाहूंगा. देखो हमारे लाइफ में इतने सारे लोग बैठे हैं जो हमारे लाइफ में कमेंट करते रहते हैं ना, कितना सारा कमेंट करते हैं, है कि नहीं? और हमारा जो माइंड है ना, वो क्या करता है, ज्यादातर याद कमेंट ही रखता है ना? अगर मैं यहां अदनान को कहूं, अदनान यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम टुडे, आप बहुत हैंडसम दिख रहे हो आज, और आज आपने एकदम जो लाइट शेव रखा है ना, वो तो एकदम माशाअल्लाह लग रहा है. आप मतलब आपके जो अपीयरेंस है उसको सूट कर रहा है, और हेयर स्टाइल भी आपका बहुत बढ़िया है. और ये जो चेक्स वाला शर्ट पहना है, ये तो अमेजिंग है. मतलब आज तो कोई भी फिदा हो जाएगा आपके ऊपर. लेकिन अदनान, व्हाट इज रॉन्ग? आपके दांत भी कितने बढ़िया, देखो भगवान ने सब कुछ एकदम अप्रोप्रिएट दिया है आपको, ईश्वर ने. लेकिन आपका नाक क्यों थोड़ा सा लंबा है अदनान? व्हाट इज रॉन्ग विथ योर नोज? अभी अदनान सोच रहा था कि मेरी 10 तारीफ करी भाई साहब ने, राइट? लेकिन बोला कि ये नाक की बात कर दी. अभी अदनान घर पे जाके सबसे पहले क्या करेगा, नाक देखेगा कि सब छोड़ो, है ना? तो हमारे लाइफ में इतना कुछ अच्छा होता है ना, आवर माइंड डजंट नोटिस दैट. लेकिन किसी ने कुछ बुरा बोल दिया, है ना, तो फिर वो जाके, अभी देखो अदनान को मैं रास्ते पे मिलूंगा तो बोलेगा अपनी खुद की नाक देखी है भाई तूने. Did you get my point? So क्या होता है, हमें ये, दिस इज कॉल्ड गार्बेज. अभी हमारे जीवन में कितने सारे कमेंट्स आते हैं, यस और नो, कितना सब कुछ नेगेटिव चलता रहता है.
है ना। तो इसको सब गार्बेज हम हमारे माइंड में डालते हैं, और इसी के कारण देखो, किसी को कोई सुसाइड करने से पहले जब फैमिली इश्यूज ज्यादा होते हैं ना, राइट, उसमें इतना सारा गार्बेज आता है उसके जीवन में, इतना सारा कचरा होता है उसके जीवन में, और वो कचरा होने के कारण वो सुसाइड की ओर इंसान प्रेरित होता है। क्यों? क्योंकि फैमिली में इतना सारा डिस्कशन चल रहा है, इतना सारा कचरा जा रहा है। अभी देखो, वो सारा कचरा हमने भर तो लिया, अभी ज्योति के जीवन में जो कुछ है ले लिया, निकी के जीवन में जो कुछ, सबने दूसरे लोगों से ले लिया, लाओ मुझे बोल दो भाई, लाओ हम आपके सारा गार्बेज ले लेंगे। इतने सारे लोगों ने हमें गालियां दी, सब कुछ सुन लिया, लेकिन निकालेंगे कहां? कैसे निकालेंगे मन में से? देखो, मैं सारे यंगस्टर्स को हमेशा कहता हूं कि वी नो हाउ टू रिमूव द अनवांटेड मेमोरी फ्रॉम आवर मोबाइल्स। जानते हैं ना, वी नो कैसा एक दिन बैठते ना आराम से सब कुछ डिलीट मारने के लिए, है ना। वी नो हाउ टू रिमूव वायरसेस फ्रॉम आवर कंप्यूटर, अनवांटेड मेमोरी फ्रॉम आवर कंप्यूटर। वी नो हाउ टू फॉर्मेट इट, बट वी डोंट नो हाउ टू फॉर्मेट अवर ओन सिस्टम। ये हमें नहीं पता, हमारे सिस्टम की अनवांटेड चीजों को कैसे निकालें। दिस इज व्हाट वी आर टीचिंग फ्रॉम लास्ट 40 years, एंड आई एम टीचिंग फ्रॉम लास्ट 10 years। 10 सालों से सिखा रहे। यही है कि आप कैसे वो सारा क्लटर फ्री माइंड, तो पहला है कंसंट्रेशन, जो आपको पढ़ाई में या ओवरऑल कंसंट्रेशन में हेल्प करेगा। दूसरा है कॉन्फिडेंस, आपको एक अलग व्यक्तित्व बनाएगा जो आप हो। और तीसरा है क्लैरिटी ऑफ माइंड। ये जो क्लैरिटी ऑफ माइंड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मोमेंट टू मोमेंट, अगर कोई कहेगा अरे मुझे क्लैरिटी ऑफ माइंड का जरूरत नहीं, जितना जीवन में गार्बेज ज्यादा है, इतना एक इंसान वाइज डिसीजन नहीं ले सकता, एक अच्छा डिसीजन नहीं ले सकता। इफ यू वांट टू टेक अ गुड डिसीजन, अ वाइज डिसीजन, यू शुड बी क्लटर फ्री। माइंड में कचरा नहीं हो, और हो तो कैसे निकाले वो पता होना चाहिए। इसीलिए प्रोडक्टिविटी के ऊपर सीधा पहले प्रहार होता है। आप देखो, दिन में कितना घंटा काम करते हो, जिस ऊर्जा से उठते हो उस ऊर्जा से घर पे जाते हो क्या वापस? नहीं, है ना। क्यों? क्योंकि हमारा ऊर्जा ड्रेन हो जाता है। मैं अपने आप की बड़ी बात नहीं करूंगा, लेकिन श्रेया को पता है, आई यूज्ड टू वर्क, अभी भी मैं इतना काम कर रहा हूं, 16 to 17 hours a day। मैं सिर्फ 5 घंटे सोता हूं, राइट, 16 घंटे काम करता हूं। कैसे हो सकता है? पहले, आज जब मैंने ये सब सीखा नहीं था, उससे पहले मैं 8 घंटे काम करता था, और मेरा बिजनेस है। अभी मेरे 3 बिजनेसेस भी चल रहे हैं। आई एम टीचिंग दिस कोर्सेज टू आर्ट ऑफ लिविंग एंड व्हाट नॉट, इतने सारे सेवा प्रोजेक्ट्स को लेकर। तो ये ऐसे हो रहा है जब अपने ऊपर फोकस करते हैं। डिड यू गेट माय पॉइंट? सो ये जितने भी हम आज कारणों की बात कर रहे हैं, अभी हम सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो क्या है द ब्रेथ ऑफ हैप्पीनेस? क्या है? जो ब्रेथ है वही राज है। कहीं सॉल्यूशन ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। इफ यू आर फीलिंग डाउन, वी ऑल आर हियर। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा, आप कुछ भी मत करो, आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर नियर में गूगल करो, एंड यू कैन कॉल एनी आर्ट ऑफ लिविंग टीचर और फैकल्टी। इवन यू कैन टॉक टू योर फैकल्टी, अपने से जो बड़े हैं उनसे बात करो कि मुझे ऐसे ऐसे अनुभव हो रहा है। यू कैन गेट डेफिनेटली मेडिकल हेल्प। अगर आपको कोई मेडिकल हेल्प चाहिए, डेफिनेटली ले सकते हो, लेकिन ऐसा कोई भी विचार आए, उसमें इंडल्ज रहना, उसमें पड़े रहना, वही आपको इस तरीके, इस सुसाइड की ओर प्रेरित करता है, राइट। मुझे कई सारे कॉलेजेस के डेटा है, बट आई डोंट वांट टू रिवील दैट। बट मैं ये कहूंगा कि जो सुसाइड करता है वो कई बार दो प्रकार की धारणाएं हैं। एक है जिसको मन में ऐसी आत्महत्या की जो वृत्ति है ना, ऐसे जो सिम्टम्स है, वो कई बार बोलते रहते हैं, है ना, कि आई विल डाई। जो 10 बार बोलता है, ये साइंटिफिकली 10 व्यक्तियों को अगर पकड़ेंगे, अगर वो बोलते हैं मैं सुसाइड कर लूंगा, उसमें से एक व्यक्ति जरूर सुसाइड करता है। तो अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो बार बार बोल रहा है आई विल सुसाइड, आई विल डाई, प्लीज टेक केयर, उनसे बात करो, है ना। आई एम ऑलवेज अवेलेबल एंड आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, है ना। आप ये नहीं सोचना। तो ये पहली बात है। दूसरा, अगर आपको ऐसे मनोस्थिति है कि ऐसा कुछ विचार आपको आ रहा है कि आई शुड एंड अप माई लाइफ और समथिंग, नो, लाइफ इज वेरी ब्यूटिफुल, है ना। ये, और आपने आज ही सुबह एक संस्कृत के एक प्रोफेसर, उन्होंने बहुत बढ़िया बताया कि साइकोलॉजिकल इश्यू आज से नहीं है, ये महाभारत के समय से है।
इतना ब्यूटीफुल ही शेयर्ड, है ना, कि कृष्णा इस सृष्टि के सबसे पहले साइकोलॉजिस्ट है। उन्होंने अर्जुन को साइकोलॉजिकली मेंटली उनको ट्रेन किया, है ना, कि कैसे इस युद्ध में, कैसे इस युद्ध के लिए हम तैयार हो जाएं मेंटली। सो देखो, इतना हमारा डीप रूटेड, हमारे इस भारत देश के इतना रूट्स इतने डीप है, कल्चरल भी रूट है इतना डीप है, तो हमें तो ऐसे विचार नहीं आने चाहिए। और हम तो एक पारिवारिक समाज में रहते हैं। हमारा देखो, हमारा जो फैमिली का जो भी स्ट्रक्चर है इवन इतना बढ़िया है। आप जाओ वेस्ट में, इतना डिफिकल्ट है उनके लिए, राइट? दे नीड काउंसलर्स, दे नीड सपोर्ट। हमें ऐसा कुछ नहीं चाहिए, हम तो दो दोस्तों को मिलने तो भी बहुत बड़ी बात हो जाती है हमारे लिए, है ना। सो प्लीज डोंट स्टॉप इट। मैं समझ सकता हूं ये कोरोना का पेंडेमिक का ये टाइम है ना, लेकिन और एक सीक्रेट मैंने ऑब्जर्व किया, कई लोग बोलते हैं आई डोंट लाइक ऑनलाइन स्टडीज, है ना, तो इसके लिए मैं ऐड करना चाहूंगा यहां पर। देखो, ये कंसंट्रेशन का जो मुद्दा है ना, मैंने जो बताया ना, फोकस और रिलैक्स, आई थिंक ये बहुत एप्ट बैठता है। आपको पता है, आप कई लोगों को ऐसा है, कितने लोगों को नहीं अच्छा लगता, रेज योर हैंड, ऑनलाइन स्टडीज नहीं अच्छा लगता, कॉलेज में जाना अच्छा लगता है? हाँ, ओके। तो आज मैं साइंटिफिकली बात करूंगा। आपको पता है कि आप जब पढ़ने बैठते हो, तो आप जब कॉलेज में हो, जब क्लासरूम में हो, जब कोई ऐसे ही पैदल चलता है ना, तो आपका कंसंट्रेशन हिलता है, आपका मन वहां जाता है। अगर एक पंछी भी आ गया ना, तो आपका ध्यान वहां चला जाएगा, या आपके पास वाले ने भी कुछ मूवमेंट करी तो हो जाएगा। तो वहां पर हमारा जो फोकस है वो हिलता रहता है। इसीलिए आप 4 घंटा वहां 5 घंटा बैठोगे तो आपको कम याद रहेगा। लेकिन जब आप स्क्रीन पे हो, तो आपका कंसंट्रेशन अगर देखोगे तो वो एक जगह पे है। कितना छोटा कंसंट्रेशन, कितनी छोटी जगह पे आपको ध्यान लेके जाना है, एज यू आर लुकिंग एट द मूवी, यस और नो। एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर, आप अपने आरामदायक जगह पे बैठे हो, अपने काउच पे बैठे हो, साथ में कैमरा ऑफ करके कुछ तो खा रहे हो, कितने सारे फ्रीडम है। तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे। मैं तो कहूंगा, जितने भी आपके मैनेजमेंट टीम, उनको कहूंगा एक लेक्चर तो वीक में एटलीस्ट, ये कोरोना का सब कुछ नॉर्मल हो जाए, फिर भी ये एक वीक में तो एक लेक्चर तो रखना चाहिए ऑनलाइन। एंड यू शुड मेजर। श्रेया, आई वुड एडवाइज यू टू एटलीस्ट टेक सम स्टैटिस्टिक्स। देखो किस लोगों को, मुझे ऐसा लगता है, मैंने अभी लास्ट वीक आई थिंक मैंने एक क्लास में 300 बच्चों को ये एड्रेस किया, एंड दे रियलाइज दैट कि नहीं, हमारा स्टडी नहीं खराब हुआ है, हमें कुछ भूल नहीं रहे हैं हम। एंड देखो ना, आप कितना कंसंट्रेशन से मुझे सुन रहे हो, वरना अभी जब मैं आपके क्लास में या कोई सेमिनार हॉल में होता तो आप तो अपने दोस्तों के साथ मेरी भी मजाक उड़ा रहे होते है कि नहीं? सो आई थिंक दिस इज मोर प्रोडक्टिव, यस और नो? तो ये हमारे मन में भी जो ये ख्याल है कि ये कोरोना खुल जाएगा, तब आई एम नॉट सेइंग कि हाँ, वो एक सोशल एनवायरनमेंट डेफिनेटली है, बट ये भी हमारे लिए एक आशीर्वाद के रूप में है। इसको हमें ब्लेसिंग्स के रूप में लेना चाहिए। क्या बोलते हैं सब लोग, है ना? तो अब आज इस रूप से आप देखना कि जो मैंने सीक्रेट की बात करी, फोकस एंड रिलैक्स एट द सेम टाइम। नाउ यू आर फोकस ऑल्सो एंड रिलैक्स ऑल्सो ऑन योर काउच, फेवरेट काउच, है ना? कई लोग होता है घर में फेवरेट काउच है, उसी के ऊपर बैठते हैं, है ना? सो दोनों है आपके पास, राइट? सो कैसे इस मनोस्थिति से दूर होंगे? द सीक्रेट इज योर ब्रेथ। तो आज हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम करते हैं, इसको अनुभव करते हैं। यहां पर जितने लोग मुझे स्क्रीन पे देख रहे हैं और भी जो लोग मुझे वेबकास्ट के द्वारा देख रहे हैं, मैं उन सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, हम आज ये करने वाले हैं। बाद में मैं इसका सीक्रेट बताऊंगा कि इसको टेक्निकली क्या इसमें फर्क पड़ता है हमारे अंदर, है ना? तो साइंटिफिकली भी बात करेंगे। ओके, तो क्या करेंगे, अभी हम थोड़ा सीख लेते हैं, है ना? तो हमारे 2 नॉस्ट्रिल है, तो हमारे जो दोनों फिंगर्स है, फर्स्ट एंड सेकंड फिंगर, उसको हम दोनों आईब्रोज के बीच में रखेंगे, यहां पर रखेंगे, राइट? और हमारा जो थंब है, उससे हम राइट नॉस्ट्रिल को प्रेस करेंगे, चेक करेंगे, और जो रिंग फिंगर है, थर्ड फिंगर है, उसको यहां से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को प्रेस करेंगे, ठीक है? तो ऐसे हम लोग टेस्ट कर लेते हैं उसको, ठीक है ना? और अपना मोबाइल को छोड़ के भी ऑल विल डू इट। अगर आप करोगे तो आपको पता चलेगा व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू, है ना? दिस इज द एक्सपीरियंस पार्ट ऑफ दिस सेमिनार।
है ना। देखो क्या होता है, हम जो भी सेमिनार लेने आता है आपके पास बोलता रहता है, बोलता रहता है, बोलता रहता है, लेकिन अनुभव भी जरूरी है। और हमारे सारे वर्कशॉप इसीलिए सारे यूथ में पॉपुलर है, क्योंकि हमारे पास दो चीजें, एक है नॉलेज और दूसरा है प्रोसेस। मैं आपको बात नहीं करना चाहता कि इतने, मुझे बताया श्रेया ने कि आप स्लाइड शेयर की, जैसे आई डोंट वांट टू, मुझे डराना नहीं है लोगों को, मुझे सॉल्यूशन देना है। मैं चाहता तो बता सकता था आपको कि इंडिया इज ऑन रेड जोन सुसाइड के मामले में, अरे ठीक है, हम सॉल्यूशन की बात करेंगे। अगर मैं हमेशा कहता हूं तीन लोग मिलके दुनिया के अगर इतनी बड़ी गूगल जैसी कंपनी बना सकते हैं, तो इतने सारे लोग समाज के कल्याण के लिए बहुत ज्यादा है। क्या बोलते हो, यस और नो, है ना। हम सारे लोग एटलीस्ट एक काउंसलर का रोल तो कर ही सकते हैं, सपोर्ट का रोल तो कर ही सकते हैं, है ना। तो अभी आज हम सीख लेते हैं एंड देन मैं आगे बताऊंगा क्या करेंगे, ठीक है। ओके, सो आपका स्पाइन शुड बी इरेक्ट, थोड़ा सा स्पाइन को भी सीधा रखेंगे और दोनों फिंगर्स को ऐसे रखेंगे, आप देख लो पहले, बाद में आप करना, है ना। दोनों फिंगर्स को दोनों आईब्रोज के बीच में, फर्स्ट टू फिंगर्स। और अब क्या करेंगे, राइट नोस्ट्रिल को थंब से प्रेस करेंगे और लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस लेंगे। फिर सांस लेने के बाद उसको प्रेस कर देंगे और राइट नोस्ट्रिल से बाहर छोड़ेंगे। और जहां से बाहर छोड़े हैं सांस, वहीं से वापस राइट से सांस लेंगे, फिर प्रेस करेंगे, लेफ्ट से सांस छोड़ेंगे, फिर जहां से सांस छोड़े हैं वहीं से सांस लेंगे, फिर राइट से छोड़ेंगे। दिस इज कॉल्ड ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, ठीक है। ऐसे हमें 9 राउंड्स करने हैं, ठीक है। सो वी विल गो लिटिल स्लोली, माइट इट विल गेट बोरिंग फॉर यू, नो प्रॉब्लम। शायद बोर हो जाए तो आप अपनी ही कंपनी से बोर हो रहे हो, ये समझ लेना, है ना। इसीलिए आपके पास एक कंप्लेन है कि लोग मेरे से बहुत बोर होते हैं, क्यों? बिकॉज यू डोंट लाइक योर कंपनी, यू डोंट क्लोज योर आईज। इफ यू क्लोज योर आईज और अगर आपको आपकी कंपनी पसंद आने लगेगी, तो लोगों को आपकी कंपनी पसंद आएगी, यू विल बिकम मैग्नेट। कई लोग मुझे पूछते हैं, आई वॉन्ट टू बिकम मैग्नेट, आई वॉन्ट एवरी वन शुड अट्रैक्ट टू मी, यू वॉन्ट टू लर्न, है ना। तो फर्स्ट यू क्लोज योर आईज एंड यू बिकम अ मैग्नेट। Once you become a magnet, once you like your company, because when you close your eyes, you start like, dislike, सब आएगा, no problem. But be with your company. Once you be with your company, and then people will fall in love for you, fall in love with you. Good idea? Okay. तो हम ये करते हैं, ये 9 राउंड्स के बाद क्या करेंगे, मैं कहूंगा कि रिलैक्स, तो आपके पाम को नीचे छोड़ देंगे अपने घुटनों पर, एंड देन I will put here small meditation. जस्ट सेकेंड में यहाँ एक म्यूजिक प्ले करके देख लेता हूं, तो अगर उसका अगर आवाज आ रहा है आपके पास तो प्रॉब्लम नहीं है ना। आवाज आ रहा है आपको? यस सर। ओके, डन डन। ओके, तो क्या करेंगे, ये 9 राउंड करने के बाद सब लोग, जो लोग मुझे यहाँ कंप्यूटर पे देख रहे हैं वेबकास्ट के द्वारा, वो लोग भी करेंगे। ओके, रेडी एवरीवन? सो देन वी विल टॉक अबाउट एक्सपीरियंस पार्ट। ओके, चलो, क्लोज योर आईज एंड स्टार्ट। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लेंगे और उसको प्रेस करके राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे। अभी राइट नॉस्ट्रिल से ही सांस लेंगे, उसको प्रेस करके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से बाहर छोड़ेंगे और राइट नॉस्ट्रिल से वापस सांस, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से वापस सांस लेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे और ऐसे कंटिन्यू करें। लंबी गहरी सांस होनी चाहिए। आंखें बंद ही रखें। अब जब मैं कहूंगा तभी आंखें खोलेंगे। कंटिन्यू, चालू रखें।
Continue. Continue breathing. Continue. Keep your eyes closed and continue. रिलैक्स, आंखें बंद, हाथों को नीचे छोड़ दें और आंखें बंद रखें। विश्राम करें। Become aware of your body. अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग हो जाएं। जो भी आवाजें आ रही है आसपास, उन सभी आवाजों को स्वीकार करें। Accept all the noises around you. जो भी विचार आ रहे हैं मन में, उन सभी विचारों को भी आने दें। Do not stop or resist any of your thought. विश्राम करें। Become aware of your body. अपने पैरों के प्रति सजग हो जाए। Just take your attention, scan it, don't move it. दोनों पैर के पंजे, अपना ध्यान दोनों घुटनों पर लेके जाए। Both the knees. दोनों जंगा, thighs region. Just take your attention, don't move it. दोनों पैर, पूरे दोनों पैर,
genital region, जननेंद्रिय, नाभि, stomach region, abdomen, पेट का भाग, छाती, chest region, throat region, गला, right shoulder, right arm, दायां कंधा, दायां हाथ, left shoulder, left arm, बायां कंधा, बायां हाथ, चेहरा, फेस रीजन, सिर का भाग, हेड रीजन, पूरा शरीर, योर होल बॉडी, योर बॉडी इज डिवाइन गिफ्ट टू यू, वेरी प्रेशियस टू यू. रिस्पेक्ट योर बॉडी. मनी मन सम्मान करे अपने शरीर का. Whatever you have in your life, just feel grateful for that. जो भी आपके पास है जीवन में, उसके लिए शुक्रिया अदा महसूस करें, कृतज्ञ हो जाएं, जो कुछ भी है. लंबी गहरी सांस लें और खाली करें. Become aware of your body and surrounding. Whenever you feel complete, slowly and gradually, you may open your eyes. धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं. How was it? Good. If you can write in chat section, I want to see आप क्या लिख रहे हैं. If you can type in chat section. How are you feeling right now? If you can type, so I can see you, see your experience. Or you can unmute one by one. Nikki, you can unmute. It's okay. So make it little interactive, no problem. How are you, Nikki? Hello, sir. How are you? Sir, I feel so positive. Actually, ऐसा फील हुआ है कि पूरा दिन का स्ट्रेस एक ही मिनट में निकल गया. सच में feel so positive. Thank you so much, sir. Okay. और ज्योति, you can unmute and share. Hello sir, how are you? I am good.
सर बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव और बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील हुआ है इसके बाद। आई कैन फील, मैं अपनी पूरी बॉडी को फील कर पा रही थी। जैसे जैसे आप मुझे कह रहे थे वैसे वैसे मैंने बॉडी को फील किया है। एंड सीरियसली मैं खुद अंदर से कह रही थी खुद को कि हाँ थैंक यू कि मेरी बॉडी को मैं हेल्दी रखना चाहती हूँ और मैं रखूँगी। और बहुत पॉजिटिव फील हुआ है सर, बहुत ज़्यादा। Great. थैंक यू सो मच सर। Great. Okay. Any last? Diksha, you want to share? Diksha or Sunidhi, whoever. सर आई कैन शेयर सर। सर बहुत अच्छा लगा सर, और काफी रिलैक्स लगा, और सर पूरी जो भी स्ट्रेस था वो सब निकल गया। थैंक यू सो मच सर। Okay. So whatever हमने अभी जो भी किया है, it is just a trailer of it. What we teach in the workshop, it's just trailer. How many of you want to be in this state of mind whole day? कितने लोगों को यही state of mind के साथ पूरा दिन रहना है? So we have a secret, and we teach this secret called Youth Happiness Program. हम इसका प्रोग्राम का नाम ही हैप्पीनेस प्रोग्राम है ना? एंड आई थिंक यू ऑल आर वेरी लकी, यहाँ जितने लोग मुझे सुन रहे हैं। हमारा एक बहुत ही बड़ा फेस्टिवल चल रहा है जो पैन इंडिया है अभी, है ना? जो हम लोग 24 से 27, 24, 25, 26, 27 ये 4 दिन का है। और उसमें हम लोग बहुत सारे सेलिब्रिटीज के साथ बात करें, बहुत सारे सेशंस हमने ऑर्गेनाइज करे हैं, है ना? बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स भी आने वाले, दे विल कम एंड शेयर। एंड द गुड न्यूज इज हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर है, he will also come and address all the participant on last day. Good idea. So I think it's an amazing opportunity. ये ऐसा साल में एक ही बार रेयरली होता है ना? यंगस्टर्स के लिए तो नहीं हुआ अभी तक। तो ये 18 से 30 साल के 35 साल के लोगों के लिए ये वर्कशॉप है। आप जितने भी लोग आप करना चाहते हो, यू कैन गूगल मी जितेंद्र खिमलानी, आप गूगल पे मेरे डिटेल्स सारे मिल जाएंगे, और यू कैन कनेक्ट टू माय ऑल द सोशल मीडिया पेज एंड ऑल। एंड इवन श्रेया इज देयर, हमारे बहुत से, पायल देसाई इज आल्सो देयर, हमारे बहुत सारे हमारे वॉलंटियर्स हैं, हमारे आर्ट ऑफ लिविंग से बिलोंग करते, वो आपके यूनिवर्सिटी में ही है। एंड आई एम श्रेया डेफिनेटली विल शेयर द डिटेल विथ यू ऑल, तो आपके साथ शेयर भी कर देंगे जो आपके ग्रुप्स वगैरह है उसमें। बट आई वांट कि उसमें 4 घंटे का होता है, हाँ सॉरी 2 घंटे का होता है, 4 दिन के लिए होता है। हाँ, सुबह या शाम जो भी बैच आपको चाहिए, 2 hours, that's it. And we will give you one technique. Only 20 minutes a day you follow, only 20 minutes. And you see 30.5 घंटे तुम्हारे ठीक हो जाएंगे। आपका प्रोडक्टिविटी, आपका आपका इम्यूनिटी, आपका माइंड, कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्फिडेंस, ये सब कुछ डिफरेंट हो जाएगा, है ना? मैं पिछले शायद 15-16 सालों से बिजनेस कर रहा हूं, लेकिन आई वुड डेफिनेटली से कि मैं जो यहाँ आके यहाँ पर सीखा हूँ, मैंने 15 साल अपने खुद के बिजनेस में नहीं सीखा है। दिस इज द अमेजिंग प्लेटफॉर्म, यू कैन लर्न एंड एक्सप्लोर योरसेल्फ। जो व्यक्ति एक बार सुदर्शन क्रिया कर लेता है, जो हम सिखाते हैं स्काई टेक्निक, वो अगर कर लेता है, डेफिनेटली वो कभी सुसाइड नहीं करेगा। आई एम वेरी श्योर नहीं करेगा, है ना? तो ये तो जरूरी है, बिकॉज यू नो द टूल हाउ टू कम आउट। और देखो अभी इवन मैं अभी नॉर्मली भी, अपार्ट फ्रॉम दिस सुसाइड प्रिवेंशन डे अगर बात करूं, तो जो मैंने कंसंट्रेशन, कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी ऑफ माइंड की बात करी, वो तो ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा अभी का यह है कि सभी लोग अपने घर में है ना? थोड़ा ये जो नया जीवन जीने की जो शैली है, उसमें हमें हमारा इम्यूनिटी का ध्यान रखना पड़ेगा। यस और नो? थोड़ा सा इम्यूनिटी को देखेंगे तो उसमें अगर आप गूगल करेंगे हाउ टू इंप्रूव माई इम्यूनिटी और हाउ टू सेव फ्रॉम कोरोना वायरस, तो आपको गूगल 3 चीजें बताएगा। पहला बताएगा कि भाई सैनिटाइज करो अपने हाथों को, मास्क पहनो, है ना, और सोशल डिस्टेंसिंग रखो, ये पहला बताएगा। दूसरा बताएगा कि आप आयुर्वेदा को फॉलो करो, फॉलो सम आयुर्वेदा, है ना? हमारे ही पास टर्मरिक है, पेपर है, इतनी सारी औषधियां हैं, तो उसको फॉलो करो। और तीसरा उसमें है डू सम ब्रीदिंग, बिकॉज ये वायरस का रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर हमारा बहुत बड़ा असर है। तो व्हेन यू डू सुदर्शन क्रिया, आपका इम्यूनिटी डेफिनेटली बूस्टेड रहेगा। और फ्यूचर में आने वाली जो बीमारियां हैं, है ना, कहते हैं कि जितनी भी बीमारियां हैं उसका एक साइकोसोमेटिक रीजन रहता है। कोई भी बीमारी को अगर साइकोलॉजिकली देखें तो उसके पीछे एक नेगेटिव विचार है, तभी वो बीमारी जाके हमारे शरीर में वो एंटर करता है। जब आप रोज का रोज गार्बेज निकाल दोगे, नेगेटिव इमोशन रोज ही रोज
बाहर निकाल दोगे, वी विल गिव यू मोबाइल ऐप एक्सेस, प्ले करो और अपना ब्रीदिंग करो. इट इज इन सच पैटर्न्स आल्सो एंड यू हैव टू लर्न थ्रू द प्रोसेस, बिकॉज 4 दिन तो लगता है उसको सीखने में, है ना. आई थिंक श्रेया यू कैन शेयर योर लिटिल बिट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ द वर्कशॉप, श्रेया, इफ यू कैन. Yes, so I have attended this program and throughout the program it was such a relaxing experience. मुझे याद नहीं है कि उन दिनों में कौन सी प्रॉब्लम मेरी लाइफ में आई, बिकॉज एज वी से दैट प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम जब आप उसको प्रॉब्लम की तरह देख रहे हो. इट इज जस्ट एन इंसिडेंट दैट हैपेंस विद यू. आप उसको एज अ प्रॉब्लम, इट्स अपॉन यू हाउ डू यू टेक इट, वेदर यू टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी और अ प्रॉब्लम. एंड जो टेक्निक वहां पर मैंने सीखी, I have myself experienced the relaxed mode that I get into after I practice that technique, and I think those were the most beautiful days of my life. So I'm thankful and I want to express my gratitude towards such organizations like Art of Living, जो ये सामने से जाकर कोशिश कर रहे हैं. They are trying to identify what problems are being faced by the youth. Today's youth, it's all about youth, you know, and we need such people. आज मैंने एक वर्ड्स गूगल किया सुसाइड, और तुरंत एक हेल्प नंबर लिख के आ गया कि हेल्प इज अवेलेबल, यू कैन कॉल. So you see, you know, people out there are ready to help you. You just need to seek that help. You just need to accept that there is some problem with you. You are facing some problem, and there are people out there to help you out, like Jeetu Bhaiya and the entire Art of Living team. So there are so many ways you can always approach such instructors, your faculties. It was a beautiful experience. एक group में हमने जो activities की, just relaxed our minds and brains and bodies. So it's wonderful. And बहुत सारे लोग हैं. Even we have many people from foreign countries also taking up those programs. There are residential programs also. So we are not doing this just to promote Art of Living, but you know, this is all about an institution that is that is showing its willingness to help you out in this situation. So, and on this day we need such people कि वो अपनी availability आपको दिखाएं that we are there to help you, and they will help you in whatever way they can. So that was the most beautiful experience, and I'm always eager कि अब कौन सा नया program आएगा and I'll be able to join. But it's such, and they do so many activities online, so जरूरी भी नहीं है अब कि आपको वहाँ जाना ही पड़ेगा. I think it's a wonderful experience altogether. Thank you so much. थैंक यू श्रेया. सो मैं यहाँ पर आपको एक ही बात कहना चाहूंगा कि whatever आप जो भी प्रोग्राम जब भी आप देखते हो, प्लीज डोंट मिस दिस टाइम, है ना. अभी के समय में ऐसा है कि मैंने कई सारे लोगों को जानता हूँ, दे ऑलवेज थिंक कि बाद में करेंगे, और ऐसा बाद में कभी नहीं आता. तो आई वुड एडवाइज जस्ट एक्सपीरियंस इट राइट नाउ. जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं यहाँ पर, मैं कहूंगा, और वी हैव ऑलरेडी लिमिटेड सीट्स बिकॉज वो जूम पे है तो देयर इज सम लिमिटेशंस, राइट. लेकिन मैं आप सभी को कहूंगा, प्लीज एक्सपीरियंस वंस इन योर लाइफ and you will become a different person for sure. मैं मेरे अनुभव से बता रहा हूँ, मैं वो व्यक्ति ही नहीं हूँ आज जो आज से 8 साल पहले, right? So you can use your best potential, right? आज अभी देखो, right now आपके दिमाग में कुछ नहीं है, you are blank. यहाँ जितने लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया उसके बाद you are just blank. और ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में कोई इंसान कैसे सुसाइड करने के लिए विचार कर सकता है ना. हम ये करवाते हैं कि आपसे प्यार करवाते हैं, राइट. We will teach you the way to love yourself, है ना. Once you love yourself, आप इतने प्रेशियस अपने आप को मानोगे तो आप कभी सुसाइड की ओर नहीं जाओगे, राइट. इसीलिए मैंने इस सेमिनार को मैंने इसीलिए ऐसे ही रखा जैसे as I'm talking to you. I have not prepared. I have my all the PowerPoint slide and everything, but I just wanted to talk with you heart to heart, है ना. I don't want to keep my mind into it. ठीक है. So I hope सबको अच्छा लगा होगा. श्रेया and your amazing team, दीक्षा जो मुझे दिख रहे हैं, है ना, सुनिधि, आर्यन, अदनान, नित्यम, संध्या. आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी ग्लैड. आप सभी लोग को जल्दी से जल्दी हम लोग मिलेंगे. ज्वाइन दैट वर्कशॉप एंड चेंज योर लाइफ. इवन आपके यहाँ से मैं वही बता रहा था श्रेया, क्योंकि एक पायलट प्रोजेक्ट करते हैं, अगर थोड़े से कुछ स्टूडेंट कर लेंगे. देखो हमारे पास जो भी जितने भी लोगों ने हमें बताया था, वी डोंट पुट इन न्यूज़पेपर अ फुल पेज एड, हम नहीं करते. इट्स अ रेफरल बेस्ड बेसिकली ये वर्कशॉप से. आप थोड़े से लोग कर लोगे तो यूनिवर्सिटी में लोगों को, आपके फ्रेंड्स को बात करना आसान हो जाएगा, है ना. गुड आइडिया.
Okay, Shreya, I think I am done for today. और अच्छा, आपको अगर कुछ क्वेश्चन है, आई एम ओपन फॉर क्वेश्चन आंसर सेशन नाउ. या Shreya. Yes, I think we have many questions. Jitu Bhaiya, what I will do is I will forward all the questions to you and I'll get them answered because we are running short of time. Is it fine? No problem. I'm absolutely fine. Yeah. मुझे सिर्फ ऐसा है कि किसी को अगर कुछ प्रश्न अभी अगर नहीं है तो आई एम फाइन, और अगर आपके पास बहुत सारे हैं तो मुझे भेज दीजिए. आई कैन डेफिनेटली एड्रेस. नो प्रॉब्लम. I'll put you voice note or whatever the way I can communicate. All right. So it seems to be a great honor, to propose the vote of thanks to all who have helped us in making this webinar a very resounding success. I would like to thank our guest speaker for the day, Jitendra Khimnani sir, for making an excellent presentation and making this webinar very meaningful and interesting. It was such a soothing and relaxing experience. I also would like to thank all the viewers for their support and motivation. And we all will see you soon at also the Art of Living program and also with another webinar that will surely help you with some knowledge and insight. You all can quickly share your experience if you want to. How was it? I think most of them have already got their questions answered. With the technique that you have shown, I don't think they are ready to ask anything because they had so many questions earlier. You want to ask this, but now they know what is the answer. And this is not something religious. It's all about yoga. And we know that yoga has helped so many troubled souls to solve so many of their problems. And I think it has to become a part of our life anytime. Correct. We'll soon try that. We divert all of you to that path where we are the controllers of our mind. Our mind doesn't control you, but we control our mind. Correct. Anyone wants to say anything quickly? अगर कोई कुछ बोलना चाहे तो बता सकता है. Yes. Yes, please go ahead. Sandhya. Sir, I would like to thank you very much because this session was really very wonderful. The steps which you taught us was very nice and I feel so positive and boosted after that. And definitely I am going to practice this every day. And thank you so much, sir, for your valuable time. God bless you. Thank you. So I would like to share one more important thing. हमारा अभी आप आर्ट ऑफ लिविंग पे जाके श्री रविशंकर जी आर्ट ऑफ लिविंग का चैनल देखेंगे. उसमें हमारा अभी 21 डेज मेडिटेशन चैलेंज चल रहा है ना. तो डेली 7:30 से अगर आप इफ यू वांट टू मेडिटेट विद गुरुदेव श्री रविशंकर जी, यू कैन जस्ट प्ले दैट म्यूजिक. इट्स लाइव. प्ले दैट मेडिटेशन. इट इज लाइव एंड जस्ट क्लोज योर आईज. इट्स वेरी सिंपल, राइट? So meditation is not complicated. Don't complicate it. Okay? It's just matter of closing your eyes. बाकी सब कुछ हो ही जाता है ना? And it's absolutely okay. विचार आए तो it's absolutely fine, है ना? आपके ही है और किसी के तो नहीं है. ठीक है? So I'm done for today and I'm really happy. Questions नहीं हो. Questions कई लोग मुझे वर्कशॉप में आके पूछते हैं. I have a lot of questions. I said okay, meet me on last day. And the last is said, वो लोग ऐसा शेयर करते कि अब कुछ नहीं है, right? So yeah, exactly. So I think मैं आंसर करूँ उससे ज्यादा अंदर से ही आंसर मिल जाए, that is great, है ना? So thank you, Shreya and team. God bless you, and I'm really happy for you. It was an honor to have you here, sir, today. Such a wonderful experience. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you to your volunteers. Yeah. All the volunteers. Smiling faces. Bye.